अंकित शर्मा, प्रेजेंट सर। ये बेटे अपना आप 1RF क्या लिखे हो आप? रीनेम करो। सर अभी चेंज करता हूँ सर, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। अटेंड योर कॉल। रोल नंबर 2, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 3, 6, प्रेजेंट सर। 7, प्रेजेंट सर। 8। चंदन जी, 7 रोल नंबर है आपका या 8 है? 8 है सर, 8। तो फिर 9, सर 7 प्रेजेंट। 9, 10, 12, 16,
Yes, sir. 17, 18, 19, Present, sir. 19. 22, Present, sir. 23, 24, 25, 26, 29, 29, 30, 31, 32, Yes, sir. 33, 34, 35, 37, 38, Present, sir. 38. 39, Yes, sir. Present. 41, Present, sir. and 54L. ऋषभ नायक, एनीवन, किसी का रह गया अटेंडेंस? Now continuous the previous lecture, we are talking about the control of the system in the automation machines by help of the computer system. Another type of the control system, this is called the supervisory control system. As we know that the input parameters and output variable is there, and the secondary is the process. Process means all the automation, all the manufacturing of the product, all the work, all the operations, depend upon the programming. That is the process. So all the operations performed by help of the automation machines, but in between the control system, in the control system we like the system in the process, that is the actuator, input parameters, and also feedback system. The feedback is output is that is called in the variables of the system. In case of the feedback system, the variable, that process is, that is the direct process to be the control system. In this system is the supervisory control. Supervisory control by help of the operator, human operator. Human interface means human operators. All work are वाइस वर्सा, है ना. इन फीडबैक सिस्टम जो हमें फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट कंट्रोलर और सुपरवाइजरी कंट्रोलर के अकॉर्डिंग ऑल द प्रोसेसेस आर कंफर्म बाय द इनपुट पैरामीटर्स. मतलब मशीन हमारा रन कर रहा है और उस रन जो मशीन हमारा ऑटोमेशन मशीन, जब मशीन को हमने प्रोग्रामिंग रन कराया, after the running system we know that the processes is there and the supervisory control system, that control is other processes, that level of the control system, that could be the changes over there according to the supervisory control system. Means हमें जो वर्क करना है ना,
जो सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमें काम करना है, तो काम जो वर्क इन द प्रोसेस, वर्क प्रोसेस क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू द फीडबैक सिस्टम. According to the feedback system, the through the work process that is in the supervisory system. The supervisory system, in case that's the situation in the automated machines regarding tools, regarding workpiece, regarding parameters of the input, regarding the material, regarding the different operations, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी जो है हमारा अगर प्रॉब्लम्स हैं, द प्रोसेसेस इज द कंट्रोल सिस्टम in automated system. We control it according to the situation, right? Got it? Another process is that is the DCS. DCS in the sense of DCS, that is the distributed control system. As the name of distributed control system, we know in the system through the computer that connected to the microcomputers, multiple microcomputers are connected together to share and distribute the process in the control work to the load. Like that, NC machines, DNC machines, है ना, DNC machines, so many machines, एक ऑपरेटर्स जो है वो एक कंप्यूटर से कई सारे मशीन्स जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन. that is called the micro computers is there, multiple micro computers. Another point is that is the component and the features. Component means जो ऑटोमेशन सिस्टम में कंपोनेंट जो वर्क हो रहा है ना, that means multiple process of the control of the station. कौन चला गया अभी? Now the component of these features, that means multiple process of the control station. Multiple control station on the automation machines, we know the one system is there and through the sensors, चाहे वो रोबोटिक्स वर्क हो रहा हो या ऑटोमेटेड मशीन्स हो, है ना, बट द माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग we know that the multiple process of the control at the different station is in the central control room for the supervisory control, है ना, सर्वर रूम जिसको बोलते हैं, राइट. तो सर्वर रूम से क्या होगा कि हम कंट्रोल ऑफ द सुपरवाइजरी उसको हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि एरर कहाँ है, कैसे वर्क हो रहा है, राइट, थ्रू द नेटवर्किंग. लोकल ऑपरेटर्स स्टेशन, दैट इज द लोकल ऑपरेटर, कैसे वो रिड्यूस कैसे कर सकता है, कैसे वर्क एरर को कैसे रिमूव कर सकता है, that functions is, that is the operating system. Now communication network is that is the data highway for the processes and the operator station, that interaction over there. कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हमारा जो प्रोसेसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर्स है वो इनपुट डिवाइस, मतलब जस्ट प्रोग्रामिंग वो कैसे कर रहा है ना, प्रोग्रामिंग के बाद वो कैसे रन कर रहा है,
क्या उसका सेटअप टाइम है, right, and how to work on it. That is the use of DCS. That is the use of the distributed control system. इस तरह से वर्क करता है in the terms of the block diagram. You can see here the local operator. One is the process, raw material आया, process हुआ, automation system, and through the product, मतलब input parameters through the raw material, और आउटपुट इज वेरिएबल प्रोडक्ट हमें मिल गया। लेकिन इन बिटवीन हमें क्या क्या प्रोसेस होता है, इन बिटवीन थ्रू द नेटवर्किंग, थ्रू द कम्युनिकेशंस क्या क्या प्रोसेस होंगे। तो जैसे लाइक दैट हियर द प्रोसेस स्टेशन, क्या काम हो रहा है, दैट प्रोसेस स्टेशन इज देयर। अनदर लोकल ऑपरेटर स्टेशन, है ना, ऑपरेट कहाँ से कर रहा है ऑपरेटर्स, बिकॉज वन मशीन सी वन ऑपरेटर्स एंड एन नंबर ऑफ द मशीन्स जो है वो ऑपरेट कर सकता है मल्टीपल टाइम में। central control room, that central control room is used by help of the microsystem, use the networking system, और जो प्रोसेस हो रहा है प्रोसेस स्टेशन के अकॉर्डिंग, है ना, ये हमारा जो प्रोसेस स्टेशन है मतलब नंबर ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स हैं, प्रोग्रामिंग कैसे हो रहा है, कैसे हम उसे एप्लीकेशन किस किस तरीके से हम उसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द डिपेंड अपॉन द मटेरियल सिचुएशन, राइट। द कंट्रोल रूम के बाद दैट कम्युनिकेशन इज लोकल ऑपरेटर स्टेशन, local operator station through the communication passes through the signal, ना, जैसे नेटवर्किंग सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल इन द मारुति इंडस्ट्री वी नो कि थ्रू द कन्वेयर बेल्ट, है ना, पासेस ऑन द कन्वेयर बेल्ट, ऑब्जेक्ट जो है एक ऑब्जेक्ट हमें अगर हमें मिल गया कि उस पर्टिकुलर स्टेशन पे, पर्टिकुलर जॉब स्टेशन पे जो प्रोसेस स्टेशन है उस पे हम पर्टिकुलर हम वर्क कर रहे हैं, लाइक दैट अगर कहीं पे टायर अगर लग रही है तो सिर्फ टायर ही पे, इंजन की असेंबली हो रही है तो सिर्फ इंजन असेंबली होगा, अदर एसेसरीज लग रहे हैं तो अदर एसेसरीज ही लगेगा। सपोज हम अगर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो वेल्डिंग का ही काम होगा, राइट। वो अगर बॉडी का अगर हमें चेसिस बन रहा है तो बॉडी का चेसिस ही काम होगा, प्रेसिंग मशीन्स का काम हो रहा है तो प्रेसिंग मशीन्स का काम होगा, है ना। बट प्रोसेस हमारा सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम जो सिग्नल के अकॉर्डिंग हम वर्क हम पास करते हैं, राइट। तो दैट इज द एग्जांपल कि हम प्रोसेसेस जो है, जो रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से, है ना, जो रॉ मटेरियल से और फाइनल प्रोडक्ट तक रॉ मटेरियल से जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट तक हमारा प्रोसेस क्या होगा, राइट, उसकी हमें इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, क्या क्या हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या हमारा सीक्वेंस होगा, वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, प्रोसेस ऑफ दिस स्टेशन के अकॉर्डिंग थ्रू द सिग्नल, है ना। जैसे अभी ऑनलाइन एग्जाम हो रही है तो थ्रू द सिग्नल सिस्टम, जो थ्रू द सिग्नल वेबसाइट के थ्रू हम जो ऑनलाइन है, YMCA क्या है हमारा, तो YMCA ने किसी थर्ड पार्टी को दिया, है ना, हायर को दिया, हायर ने जो कि वो क्या है, वो एग्जाम कंडक्ट कराना, मटेरियल सारा प्रोवाइड YMCA के थ्रू है, और हायर जो है वो सेंट्रलाइज है, वो थ्रू द सर्वर क्या कर रहा है कि बच्चों को ID और पासवर्ड और जो भी वर्क है XYZ जो उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क करना है वो वर्क कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज द सेंट्रल कंट्रोल रूम,
है ना। और लोकल कंट्रोल रूम क्या है कि दैट लुक आफ्टर कौन है, वो YMCA जो लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, डाटा प्रोवाइड हो रहा है। लोकल ऑपरेटर जो है दैट इज द डाटा, एंड वी आर द स्टूडेंट, वी आर द प्रोसेस स्टेशन, इज ऑल आर द प्रोसेस स्टेशन। ये सभी बच्चे जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। सेम टाइम, सेम पासवर्ड, सेम लॉगिन आईडी, जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी का काम, है ना, एवरीथिंग, सभी लोगों का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, है ना। लोकल में जैसे हम लोकल ऑपरेटर लाइक दैट, अगर कोई किसी के आईडी पासवर्ड नहीं आ रहा है तो कॉलेज में जो कि एक हैं जिनको कि आईडी पासवर्ड ऑथराइज है, उनसे हम ले सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या हुआ कि लोकल ऑपरेटर्स इज देयर। तो ये इसी तरह से सभी का काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड इन द DCS, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम इज बेनिफिट, या इसकी एडवांटेज क्या क्या हो सकती है। लॉट ऑफ एडवांटेज इज देयर। सभी का काम अगर अपना अपना बटा हुआ है ना, आपस में, कि हमें मालूम है कि ये काम करना है, सभी फैकल्टी के पास पता है कि हमें ये सब्जेक्ट लेना है, ये टाइमिंग है, सभी बच्चों को ये मालूम है कि ये इस टाइम पे ये क्लास होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सभी का बेनिफिट्स है कि सेम पर्टिकुलर टाइम में सभी का काम जो है वो कहीं पे भी हौच पौच नहीं होगा, हर का काम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एंड थ्रू द कंट्रोल ओवर द सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक दैट कि कैन बी इनहांस इन द फीचर्स, है ना, आफ्टर द इंस्टॉलेशन। तो ऑटोमेशन मशीन्स वी नो कि enhance of the features we required over the system, है ना। पैरेलल मल्टीटास्किंग ऑफ द पॉसिबल विद द मल्टीपल कंप्यूटर्स, एक ही टाइम में मल्टीपल कंप्यूटर्स जो ऑपरेटर्स है वो मल्टीटास्क, है ना, एक ऑपरेटर्स है मल्टीटास्क ऑफ द ऑपरेशंस इन द डिफरेंट मशीन्स। मतलब n नंबर ऑफ मशीन्स है उसके पास, सपोज 10 मशीन्स है, तो साइमल्टेनियसली वो 10 मशीन्स को पैरेलली वो ऑपरेट कर सकता है बाय हेल्प ऑफ द सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम, है ना, थ्रू द कंप्यूटर ऑफ द सिस्टम। वो दिस इज द पॉसिबल टू टू द मल्टीपल कंप्यूटर्स और पैरेलली वो ऑपरेट कर सकता है वन ऑपरेटर। दैट इज द मेन एडवांटेज इज देयर। It has the built-in the redundancy of मतलब कि जो जो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर्स को जो वर्क मिला है ना, तो इसका मतलब है कि वर्क इन द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी, है ना। अगर हमारा एवरीथिंग इज साइमल्टेनियसली अगर सही चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस है, जो हमारा प्रोग्रेस है, तो थ्रू द प्रोग्रेस चार्ट वी नो कि हमारा दैट इज द हायर प्रोडक्टिविटी इज है ना, हायर प्रोडक्टिविटी। कंट्रोल केबलिंग एंड द रिड्यूस द कंपेयर्ड विद द सेंट्रल कंट्रोल, है ना। आसानी से हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं इन द सेंट्रली एंड कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हर मशीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेटवर्किंग फैसिलिटीज, प्लांट मैनेजमेंट, सेम टाइम जो मैनेजमेंट है ना, अंडर द मैनेजमेंट किसी भी प्लांट हेड बोलते हैं, तो जो प्लांट हेड है, जो एज पर द टेक्नीशियन इज द मैनेजर, है ना, डिप्टी मैनेजर, राइट, डायरेक्टर, वो क्या है कि द प्रोग्रेस ऑफ द वर्किंग वर्किंग इज दैट इज द विजिबल, वो डाटा के अकॉर्डिंग, जो कंट्रोल ऑफ द डाटा वो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसेस, उसे मालूम होगा मैनेजमेंट को, बहुत आसानी तरीके से वो उसे डाटा मिलता जाएगा कि हर
every hours जो प्रोडक्ट है, एवरी आवर्स जो प्रोडक्शन है, वो उसे आइडेंटिफाई होता है ना, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारा हायर है। इसका मेन एग्जाम्पल जो था, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, है ना। तो मल्टीपल प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग, है ना, थ्रू द फैक्ट्री ऑलवेज द कनेक्टेड बाय द नेटवर्क ऑफ द सिस्टम, राइट, कि हमेशा पीएलसी जो है, दिस इज द मोस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, राइट। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? No questions? That programming computers in the process of the control of system, that system we know the implementation of this the process of the control, like that. First point is, that is the operator interface. What do you mean by the interface? Is operator's interface? According to the programming, the process of the control of interface is the one or more PLCs or other devices that is the directly control of the process, that depend upon the directly control over the processes is there. The benefits इसका क्या होगा? Advantage, this is the advantage is that is the that process control is always user friendly. कोई भी यूज कर सकता है प्रोसेस कंट्रोल। एक सिस्टम बना हुआ, एक प्रोसेस बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो है बहुत ही आसानी तरीके से उसे वो कंप्लीट कर सकता है, उसे बहुत यूजर फ्रेंडली होगा, हर कोई यूज कर सकता है। इट कैन बी यूज फॉर द अदर फंक्शंस, बहुत आसानी तरीके से अदर फंक्शंस वी कैन यूज देयर। द फेलियर ऑफ द process control does not dispute the PLC of the functions, can be the easily upgraded, है ना। जैसे सिस्टम में होता है ना, सॉफ्टवेयर जैसे हम यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि अपग्रेडेशन होती है। तो अपग्रेडेशन का मतलब है कि स्लाइडली जो है कुछ चेंज होता है, एकदम से सारी चीजें सिचुएशन चेंज नहीं होता है। जिसका मतलब है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट की अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो मे बी के डायमेंशंस में चेंज होगा, मे बी की स्ट्रक्चर्स में चेंज होगा, मे बी की सब मटेरियल्स में चेंजेस होंगे, है ना, मे बी की उसकी जो फीचर्स है उसमें चेंजेस होगा, उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग किया जाएगा, है ना। जब डिजाइनिंग होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि स्लाइटली चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्लाइटली चेंजेस ऑफ द process of the control system, that is the advantage of this one. Direct control system, direct control system, that process control of the interface is directly to the processes and the control its operations in the real time, that operations in the real time, we know that the interfaces is directly to the processes is there. For example, the problems is there, if the process control is fail, so all the processes are the fail, है ना। प्रोसेस कंट्रोल अगर हमारा फेल होता है, ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग और फेल है, तो क्या मतलब है कि ऑल द प्रोसेसेस आर द फेल। Process is not denied the designation of the processes for the process control system. PC is the design to be the use in the office environment. According to the office environment, we are used
according to the design of the system, है ना. The process control के according we control over there, and operations we know that की different operations different work is there. However, there the trace to the process control, the deployment of the direct control due to the several factors. Due to the several factors, wide the spread of the preliminary with the PCs, availability of the high performance, open the architectures, that philosophy in the control system of the design, which means the processing of the hardware and software, है ना. दोनों चीज, कोई भी ऑटोमेशन मशीन है जहां हम सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, है ना, ऑटोमेटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, तो बोथ ऑफ दिस यूज ओवर देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम. और always the software system is the more and more advantages, है ना, and also the upgradation is there. हमेशा जो है जो सॉफ्टवेयर है वो अपग्रेडेशन होता जाए, है ना, अकॉर्डिंग टू द अपग्रेडेशन, तो मोर एंड मोर फंक्शंस कंप्लीट होता जाएगा. जैसे हम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आपने यूज किया होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल कैड है, तो कैड की हर वर्जन एवरी ईयर जो है ना न्यू वर्जन आते हैं, तो इसका मतलब है कि मोर एंड मोर जो पुराने वर्जन है और न्यू वर्जन है दोनों में स्लाइटली चेंज है, बट इट इज द इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर. हर सॉफ्टवेयर की इम्प्रूवमेंट है दैट सॉफ्टवेयर, एंड दैट इज पूल ऑफ द वेंडर्स not not getting the whole system from the same supplier, है ना. अलग सॉरी, अलग अलग जो सप्लायर्स है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सप्लायर, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, हमें उसे उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शंस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्रामिंग बनाना होगा. तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, according to the system we know that process of the control over the system in the process, that is availability of the process is operating of the system, है ना, operating of the system that facilitates the real time of the control, that multitasking and networking system. ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के अकॉर्डिंग मल्टीटास्क ऑफ द ऑपरेशंस, है ना, हमारा मल्टीटास्क ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं. And industrial grades, that programming of the process that can be used to the cope up with the in the factory and all the environment according to the situation of the environment. We know that कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमारा वर्क होगा तो दैट इज द कूल एंड पीसफुल वर्क है और 100% क्वालिटी प्रूफ है. नो एरर इज देयर अनटिल अनलेस, जब तक हमारा प्रोग्रामिंग में कोई अगर हमारा कोई एरर नहीं है, है ना. दैट्स व्हाई दिस इज द ऑटोमेशन सिस्टम. इन ऑटोमेशन सिस्टम में हमारा वर्क जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है ना, जो हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज द हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. डाटा इंटीग्रेशन इज easier to using the PC than using the PC and programmable logic controls over the system. तो हम प्रोग्राम बनाते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना है, जो प्रोग्रामिंग को हमें एग्जीक्यूट करना है, उसी जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जो हमने न्यूमेरिकली जो हमने प्रोग्राम जो सिंबल्स हमने जो यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मशीन क्या काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और सेम डाटा के अकॉर्डिंग हमें फुल प्रूफ जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा.
इसका मतलब है कि जो हमने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो वर्क किया, दैट इज द हाई एफिशिएंसी, हाई वर्क एफिशिएंसी इज देयर। अनदर थिंग इज द इंटीग्रेशन ऑफ द फैक्ट्री डाटा, है ना, वाइड इंटीग्रेशन, दैट इज द इंटरप्राइजेस। तो आपने हर कंपनी में लिमिटेड देखा होगा, इंटरप्राइजेस सुना होगा, है ना। दैट कंपनी जो है अलग अलग जो है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। जो इंडस्ट्री है वो किस तरीका का बिजनेस करना चाह रहा है ना, किस तरीके का बिजनेस होगा। लाइक दैट कोई मार्केटिंग ही करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की जो प्लानिंग है, जो कि लाइक दैट ईआरपी सिस्टम है ना, इंटरप्राइजेस जो रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम, लाइक दैट कि जैसे जीएसटी है, जीएसटी है तो जीएसटी के लिए हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके प्रॉफिट तक, है ना, कि वेंडर को हमने इनपुट लेने से आउटपुट, हमने वेंडर को जो आउटपुट दिया, सामान हमने दिया मार्केट में जो सेल किया, वहां तक की सारा का सारा ईआरपी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम हमारा क्या है, मैनेजमेंट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल हमारा कैसा है। तो डिपेंड अपॉन द कॉर्पोरेट लेवल, हम हर फैक्ट्री में, है ना, एक अपना सिस्टम होता है, एक अपना डाटा होता है, उस डाटा के अकॉर्डिंग ही है वो वर्क करता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट, जैसे अभी कोविड है, तो कोविड के अकॉर्डिंग डाटा जो जैसे प्रोवाइड कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, जो गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर बनाया, तो उस सॉफ्टवेयर से ही तो डाटा मिल रहा है ना। तो एक ईआरपी सिस्टम है जो रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम है, एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग सिस्टम है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हर कंपनी में एंड इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल द बिजनेस ऑफ द फंक्शंस दैट इंक्लूडिंग द फैक्ट्री ऑफ द डाटा, है ना, हर इंडस्ट्री की डाटा होगा, क्या क्या काम हो रहा है, कैसे वर्क हो रहा है ना, क्या डाटा है, कितने मशीन्स हैं, एक मशीन्स में एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या टाइम लगता है, हर डाटा को हम कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, और उसी डाटा को जो जो डाटा हमने फीड किया, उसी से हम फिर एनालाइज करते हैं, उसी से को हम एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद जो हमें प्रोवाइड होती है डाटा, तो दैट इज द इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ द होल ओवर द ईयर की जो हमारा प्रोडक्शन है, तो हम उसको हम इम्प्रूव करने के लिए, इंडस्ट्री की इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज द हेल्पफुल ऑफ द ईआरपी सिस्टम। एंड की फीचर्स ऑफ द ईआरपी that uses the single central database, that is the accessible for from the anywhere in the company, कहीं पे भी हम असेसमेंट हम कर सकते हैं। जो अगर हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम किसी भी एक्स वाई जेड, किसी भी कॉर्पोरेट में हम उसे हम वर्क कर सकते हैं एज पर द प्लानिंग ऑफ द सिस्टम। राइट, गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस? जो ईआरपी डाटा होती है, जैसे कि आप जैसे जब एग्जाम आप देते हो, तो एग्जाम देते हैं तो रोल नंबर है, या जो आपने फॉर्म भरा, तो वो क्या है, एक डाटा है, और उस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम वर्क कर रहे हैं, उस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, somebody is gone, कौन गया? एक किसी का अटेंडेंस रह गया क्या? एक बंदा कौन गायब हुआ? 22 का होल्ड है, जनेश भी है, चंदन, अंकित शर्मा गायब। एनी अदर स्टूडेंट? किसी को